everyone, today we cover the exercise of the newcomer chapter 2 lesson number 1. So our first question is, how do the animal felt about the newcomer? What do you think is the main emotion in the poem? तो इसका आंसर है, the animals likely feel curious, cautious or even suspicious about the newcomer. The main emotion in the poem could be uncertainty or apprehension as the animals try to understand and adjust to new presence in their environment. Now our second question is, there are a lot of negative in the poem. What is the effect of word no repeated again? The answer, इसका आंसर है, the repetition of the no in the poem emphasize the denial, rejection and uncertainty, highlighting the animal's hesitation to accept the newcomer. Now move over to third question. What is meant by not even the ghost of wing? तो इसका आंसर हमारे पास, इट इज़ अ पोएटिक एक्सप्रेशन दैट मीन नॉट इवन अ स्लाइट बिट और शेडो ऑफ द समथिंग्स इज present. It emphasizes the complete absence of stillness, highlighting the silence and quietness of scene. तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, where do humans do in rivers and in wherein? तो इसका पूरा क्वेश्चन है, what do humans do in the river and the wherein? What do these actions tell us about the ability of the humans? तो इसका आंसर है हमारे पास, human activities like fishing and or polluting in the river and storing good or material in the warehouse. This highlights the human capabilities in terms of technology, industry and impact on nature. Now our challenging question number 1 and its E part. Do you think that this poem is fair to human being? तो इसका आंसर है हमारे पास, yes, it is fair about the human beings. Now our reference to contact, answer the following question with reference to create there is something new in the whiteness. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, who says these words and to whom? तो इसका आंसर है, polar bear say these words to probably to other animals. सेकेंड क्वेश्चन है, what else does the speaker says? तो इसका आंसर है, it's the shadow of the new things on a glacier but it does not left any paw marks. सी क्वेश्चन हमारे पास, what was something new that speaker saw? तो इसका आंसर है हमारे पास, he saw a someone shadow. डी क्वेश्चन है हमारे पास, who else heard this news? तो इसका आंसर है, animals in the water, air and on the underground. Now our third question is, describe briefly in your own word how the know about the newcomer spread by what means does the poet create the idea that fear is being spread through the animal kingdom? तो इसका आंसर है हमारे पास, the fish told the news to the animals in the water, a thrush told this to birds and to rabbit told this to the another animals in the jungle and the polar bear told this to another animals that live in the snow. The poet creates the idea that fear is being spread through the animals kingdom by repeated use of no and by describing the action of newcomer. Now our exercise B, question number 1. Find words in the poem which have similar meaning to the following. तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास obliterate, तो इसका मीनिंग है किल. सेकंड वर्ड है हमारे पास impenetrable, तो इसका है इम्पॉसिबल. थर्ड है एयरिंग, तो इसका है स्प्रेडिंग. ट्रेस शेडो. मेक बोल्ड क्या है डेयर. स्वोलन क्या है ब्लॉटेड और डिसरिगार्ड्स क्या है इग्नोर्स. नाउ मेटाफॉर्स जो होता है वो कंपैरिजन होता है बिटवीन टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर रीडिंग अबाउट सिमिलीज एंड मेटाफॉर इन द पोएम यू विल मेटाफॉर और कैन यू से व्हाट इज इट? तो इसका है द घोस्ट ऑफ अ विंग और स्नो ब्राइट पोलर बियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, सम वर्ड्स इन द इंग्लिश कंटेन साइलेंट लेटर्स. तो ए पार्ट है हमारा, go through the poem carefully noting down all the words which containing the silent letters. तो फर्स्ट में हमारे पास घोस्ट में एस साइलेंट है. सेकंड है पा मार्क्स. थर्ड है ब्राइट. फोर्थ है डो एंड फिफ्थ है हमारे पास वाइटनेस. नाउ अवर बी पार्ट इज सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग. तो फर्स्ट वाले में काम, एल साइलेंट है, इसका मतलब है पीसफुल. सेकंड वाले में हम, तो एन साइलेंट है. थर्ड जो है हमारे पास सटल है, जिसका मतलब है डिसेंसी. और
इसमें बी साइलेंट है और 4 वाले में हमारे पास रेन जी साइलेंट है, इसका मतलब है गवर्नमेंट। पुट द वर्ड्स फ्रॉम द list below into 4 columns as above according to the silent letters. Read the list aloud, do not pronounce the letters. तो इसका जो 3 पार्ट का सी है, इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट वर्ड है हमारे पास the words in which B is silent. तो dumb, dumb, that, subtle, plumber, numb और doubt. और सेकेंड है the word in which G is silent, resign, foreign and fail. Now the words in which the L is silent, तो arm, calm, salmon, palm, yolk, almond and should. नेक्स्ट है जो है हमारे पास the word in which the N is silent, तो इसका है autumn, condom, dam, hum and column. Now move to the exercise C, clauses. Clauses जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. Clauses are the group of words containing both subject and predicate. तो इसके मुतालिक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि पहले ये कर लेते हैं. That boy is my brother. तो बॉय जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट एंड माई ब्रदर जो है वो है प्रीडिकेट. साइलेंटली द शिप लेफ्ट द हार्बर. तो शिप जो है वो हमारे पास क्लास की टाइप में वो हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास प्रीडिकेट. शी कैन रीड अ बुक. तो शी जो है वो सब्जेक्ट है, रीड अ बुक प्रीडिकेट है और इसमें रीड जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है. इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन नोटिस दैट ईच क्लास हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. कैन यू डिवाइड सेंटेंसेस अबव इनटू सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. तो इसी तरह इनको हमने डिवाइड कर दिया सब्जेक्ट की टाइप से. मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, मेन क्लास. तो मेन क्लास जो होते हैं वो डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लास और दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लासेस. दे कैन स्टैंड बाय देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट क्लासेस. जैसे कि द बॉयज इज माई ब्रदर एंड दिस गर्ल इज माई सिस्टर. शी कैन रीड अ बुक और शी कैन राइट अ लेटर. सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं उसे डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं. दिस इज बिकॉज क्योंकि दे आर जनरली नॉट एबल टू स्टैंड अलोन एज अ मेन क्लास ऑफ सेंटेंस. सबऑर्डिनेट क्लास अल्टर, लिमिट और क्लैरिफाई द आइडिया ऑफ द मेन क्लास. ये लिमिट लेते हैं और क्लैरिफाई करते हैं मेन क्लास के आइडियाज़ को. दे कैन बी फंक्शन एज नाउन एडजेक्टिव्स ऑफ द एडवर्ब्स. दे आर क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर नॉर्मली लिंक्ड टू द मेन क्लास बाय लिंकिंग वर्ड्स सच एज दैट, विच एंड वेयर. स्टडीज फॉलोइंग. तो मेन क्लास जो हमारे पास है द मैन लेफ्ट द रूम और सबऑर्डिनेट क्लास बिफोर द गेस्ट अराइव. तो इन दोनों को मिलाओ तो ये इनमें दोनों आ जाते हैं, मेन क्लास भी और सबऑर्डिनेट क्लास भी. सेकेंड है दे सा द मैन हु स्टोल द कार. वी मे गेट सम हेल्प इफ द मैन अराइव. She went to the park when the sun began to shine. तो इसी के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. अंडरलाइन द मेन क्लासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो फर्स्ट में हमारे पास जो चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क ये मेन क्लास है और आफ्टर दे हैड देयर लंच ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है. इसी तरह महम वेंट टू लाइब्रेरी ये हमारे पास मेन क्लास है और शी डिड नॉट वांट टू हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है. सी पार्ट में वी स्टॉप्ड एट द टाउन सबऑर्डिनेट ये हमारे पास मेन क्लास है और वेयर माई फादर वाज बोर्न वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है. डी पार्ट में भी हमारे पास मेन क्लास द बॉय वेंट आउट टू द प्ले फुटबॉल ये और ई पार्ट में हमारे पास द एक्टर मेट द चिल्ड्रन ये मेन क्लास है. एफ पार्ट में ही केम. जी पार्ट में द मैन वेंट. एच पार्ट में द ट्रीज डाइड. आई पार्ट में वी शैल ऑल गो टू द पार्क एंड जे पार्ट में द पुलिस मैन अरेस्टेड द मैन ये हमारे पास मेन क्लास है. अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. हाईलाइट द प्रीपोजिशन, अंडरलाइन द प्रीपोजिशन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो फर्स्ट में ऑन अ ग्लेशियर है, सेकंड में आउट ऑफ द विंडो, थर्ड में ऑन टाइम, फोर्थ में इन द आफ्टरनून, ई पार्ट यानी 5 पार्ट में बिहाइंड द ट्री, एफ पार्ट में इनसाइड द हाउस, जी पार्ट में एट 7 o'clock, एच पार्ट में इन एक्सचेंज फॉर दिस एप्पल, आई पार्ट में आफ्टर आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट एंड जे पार्ट में ड्यूरिंग दी आफ्टरनून. तो जितने भी ये ग्रीन हाईलाइट हुए हैं लफ्ज़ ये सारे हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं. अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. यूज द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन योर सेंटेंसेस. तो ये है बिकॉज ऑफ. तो ये इसके सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट वर्ड है बिकॉज ऑफ. द मैच वाज पोस्टपोन
because of rain. Second है by means of. Insects propagate themselves by means of eggs. Third है हमारे पास due to. The buses was delayed due to heavy rain, heavy snow. Next है instead of. I will buy a phone instead of PC. In addition to writing, she carried out good work. Next हमारे पास in front. They never argued in front of their children. Now our next word is on behalf of. We got you this gift on behalf of entire team. Apart from Friday I will be in London. Now move forward to the last word, in need of. More important things were in need of this attention. So Allah Hafiz, stay connected with the reading sense. We will discuss the exercise D and E in the next part, and we will discuss the A, B and C in this video. So Allah Hafiz, thanks for watching.